Little Benjamin. It's a story about a boy whose name was Benjamin. The baby was very small, so it is mentioned here. Adjective little is used for the boy. Little Benjamin. This extract, children, extract means from a big story, some part has been taken and printed in your book. This extract from a story by a 19th century American writer, Laura E. Richards, tell the cheering, means refreshing, warming tale means story of the Golden family, means this is a story of a Golden family, the surname was Golden, who finds a baby on their doorstep one night. एक दिन रात को जब वो सो के उठ, एक दिन रात में उनके डोर स्टेप पे एक बेबी मिला. It doesn't take long for this loving family to welcome the baby into their home and their hearts. So the family accepted the baby in their homes and also into their hearts. So it's an interesting story about a baby whose name was Little Benjamin. I think the kitty wants to come in, said Mother Golden. Mother Golden ने कहा, लगता है बिल्ली, छोटी बिल्ली अंदर आना चाहती है. I hear him crying somewhere. Won't you go and let him in, Adam? Adam बेटा ज़रा बाहर जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं आया? वो कहीं पे रो रही है. And उसको अंदर आने दो. Let him come in. Adam laid down his book and went down. Laid down means नीचे रख देना. Adam ने अपनी किताब नीचे रखी और बाहर गया. The whole family looked up cheerfully, expecting to see. Expect means किसी की इच्छा रखना, उम्मीद रखना कि कौन है दरवाजे पर. अलादीन, देयर पेट कैट. तो उनकी पेट कैट है और वो उन्हें लगा कि एडम जब गेट खोलेगा तो उनकी पेट कैट जिसका नेम अलादीन है वो होगी दरवाजे पर. There was a pause and then Adam came back with a white scared face. और सब कुछ एकदम शांत था और एडम जब लौटा दरवाज़ा खोलकर तो उसका फेस एकदम सफ़ेद हो रखा था, घबराया हुआ था. He looked at his father without speaking. सबसे पहले एडम ने अपने पापा की तरफ देखा. What is the matter, my son? asked Father Golden. पापा ने कहा, बेटा क्या हुआ? The cat isn't there, said Adam. एडम ने कहा, बिल्ली नहीं है वहाँ पर. It's a basket, father. पापा वहाँ पर एक बास्केट रखी है. A basket? What does the boy mean? अरे बास्केट क्या मतलब है तुम्हारा? A long basket with something white inside and it's crying. बेटे ने कहा, एडम ने कहा, पापा एक बड़ी बास्केट है जिसमें कोई सफ़ेद चीज़ है और वो रो रही है. Oh my God, said Mother Golden. And she was out of the door in a flash. In a flash means in a moment. So एकदम से उसकी मम्मी दरवाजे की तरफ भागी. See there now, said Father Golden. Go and help her, some of you. पापा ने कहा, अरे देखो बच्चों कौन है, जाओ मम्मी की मदद करो. The children ran towards the door, but were met by Mother Golden returning. सब बच्चे दरवाजे की तरफ भागे और इतने में ही Mother Golden वहाँ से कुछ चीज़ अपनी गोदी में लेकर आ रही थी. In her arms there was a long basket in which was indeed something white and fluffy that cried. उनकी बाहों में कुछ सफ़ेद सी बास्केट थी जिसमें कुछ वाइट और फ्लफ़ी था, कुछ बच्चा था और वो रो रहा था. A baby, exclaimed Father Golden. Father Golden चिल्लाए, अरे बच्चा. Mother Golden lifted the child out. Mother Golden ने बेबी को बाहर निकाला. The baby stopped crying and looked up at her face. बच्चा रोना बंद करके अब उस लेडी की मुंह की तरफ देखने लगा. My heart, said Mother Golden again. Come here, girls. Oh my God, Mother Golden ने कहा, लड़कियों इधर आओ. There were some girls in her family, so mother called the girls her daughters. The girl bent forward eagerly. Bent forward means उसकी तरफ झांक कर देखने लगी. Look at its little hands, murmured Mary. Mary ने धीमी आवाज़ में कहा, ओह कितने प्यारे प्यारे हाथ हैं, छोटे छोटे. They are pink. They are like pink shells, only soft. ये पिंक शेल्स की तरह कितने सॉफ्ट है. ओ सी इट मूव्स देम, रुथ. मैरी ने रुथ से कहा, ओह रुथ ज़रा देखो ये अपने हाथ कैसे हिला रहा है. सो द गर्ल्स ऑफ द फैमिली वर मैरी एंड रुथ. शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मोमेंट ऑफ डिलाइट. मैरी ने रुथ का हाथ खुशी के मारे जोर से पकड़ लिया.
because she was very happy after seeing the baby. Oh mother, may we keep it? cried both the girls at once. दोनों बच्चियों ने कहा, मम्मा क्या हम इस बच्चे को अपने पास रख लें? मदर गोल्डन वॉज एग्जामिनिंग मीन्स चेक कर रही थी द बेबीज क्लोथ्स, बेबी के क्लोथ्स को अच्छी तरह देख रही थी. हियर इज अ नोट, अरे एक चिट्ठी है. शी ओपन्ड a folded paper and saw a few words written in a rough hand. उन्होंने देखा एक चिट्ठी है, एक नोट लिखा हुआ है और उन्होंने उसे ओपन किया और देखा कि गंदी सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है. His mother is dead, his father is a washer, she read aloud. और उस चिट्ठी में लिखा था इसकी माँ नहीं है और इसके पापा एक यूजलेस पर्सन हैं. उसने जोर से वो चिट्ठी पढ़ी. इट्स अ बॉय देन सेड फादर गोल्डन. फादर गोल्डन ने कहा अच्छा तो ये एक लड़का है. ही केम फॉरवर्ड टू हैव अ लुक. पापा गोल्डन बेबी के पास आए. द क्वेश्चन इज, पर सवाल ये उठता है, व्हाट शैल वी डू विद हिम. पापा ने कहा पर हम इसके साथ क्या करेंगे. देयर आर प्लेसेस लाइक ऑर्फनेजेस अराउंड. कुछ अनाथालय हैं हमारे घर के पास. वी हैव ऑलरेडी गॉट 5 चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ. मेरे पास ऑलरेडी 5 बच्चे हैं जिनके मुझे ध्यान रखना पड़ता है. अब इस स्ट्रेंजर का हम क्या करते हैं, चलो इसे किसी ऑर्फनेज में दे देते हैं. दीज वर द वर्ड्स ऑफ फादर गोल्डन. ओह वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी. मैरी रोने लगी, बोलने लगी हम इसकी मदद करेंगे. आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम. आई नो आई कुड एंड आई वुड जस्ट लव टू. मैरी सेड दैट मैं उसे नहला दूंगी, मैं उसे कपड़े पहना दूंगी और मैं ये सब बहुत प्यार से मन लगा के करूंगी. क्या हम इस बेबी को रख लें. So could I, said 12-year-old Ruth. चलो नोट डाउन, Ruth was 12-year-old girl. So Ruth ने कहा मैं भी ये सब कर सकती हूँ. We would take turns. हम टर्न बाय टर्न बेबी का ध्यान रखेंगे. Mary and I do let's keep him mother. मम्मी हम बच्चे का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं. हम इसे नहला धुला देंगे, इसके कपड़े भी बदल देंगे. क्या हम इस बेबी को अपने पास रख लें. So father is not agreed yet because he is saying that they already have 5 children, means there are 5 children in the Golden family. In 5 minutes mother Golden was feeding the child some warm milk with a spoon. 5 मिनट बाद ममा गोल्डन कुछ हल्का सा गुनगुना सा दूध लेकर बच्चे को पिलाने लगी स्पून से. द बॉयज़ वर नाउ क्लोज एट हर नी. सब बच्चे ये सब प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देख रहे थे क्योंकि एक छोटा मेहमान था उनके घर में. एंड वॉच द प्रोसेस विद ईगर आइज. और इस सारे प्रोसेस को वो बहुत आंखें गड़ा कर देख रहे थे. कौन सा प्रोसेस बच्चों, जब मम्मा गोल्डन बेबी को वार्म मिल्क स्पून से फीड करा रही थी. सी हिम ग्रैब द स्पून सेड जोसेफ. जोसेफ ने कहा ओ देखो देखो इसने स्पून को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया. माय इजंट ही स्ट्रॉन्ग, कैन ही टॉक मदर. ओह कितना मजबूत है ये, कितना स्ट्रॉन्ग है. मम्मा कैन ही टॉक, क्या ये बातें भी कर सकता है. जोसेफ यू चकल हेड सैड एडम. एडम ने कहा ओए जोसेफ तू तो बिल्कुल बुद्धू है. who was 16 years and knew most of the things. Adam was the eldest brother and he was 16 years old and he know most of the things because 16-year children are grown-ups. How can he talk when he hasn't got any teeth? ये कैसे बोल सकता है बुद्धू जोसेफ, इसके तो कोई दांत ही नहीं है. तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन एडम एंड जोसेफ. बेबी हैज गॉट अ टू. एडम मदर गोल्डन सेड. मदर गोल्डन ने कहा ओ बेबी. एडम सुनो इसके तो एक टूथ भी है. आई फील इट प्रिकिंग. ये मुझे कुछ चुभ रहा है इसकी मुंह में. थ्रू द गम्स दिस मिनट. जैसे ही मैंने उसके माउथ के अंदर गम्स पे हाथ फेरा मेरे को कुछ प्रिक करने लगा. प्रिक मीन्स चुभना. एंड व्हाट वाज दैट. दैट वाज अ टीथ. I was thinking, Mother Golden said eagerly, it would be best to keep him through this teething and stomach troubles. मम्मा गोल्डन ने कहा मैं ये सोच रही हूँ कि इस समय इस बेबी को केयर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसको टीथिंग और स्टमक प्रॉब्लम चलेगा. जब बेबीज़ के दांत निकलते हैं तो उनको बहुत मालिश करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है. एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कीप द बेबी विद देम and give him a good start in the way of proper food and nursing. This is the stage where he needs proper food and nursing because his teeth are about to appear.
चिल्ड्रन व्हाट डू यू से आज फादर गोल्डन। फादर गोल्डन ने घर के बच्चों से बात करी, बच्चों तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। यू आर ओल्ड इनफ टू हैव योर से, इवन द यंगेस्ट ऑफ यू। तुम में से सबसे छोटा बच्चा भी इतना मैच्योर है कि वो इस बात पे ओपिनियन दे सकता है। तो उनके घर में बच्चों क्या बात चल रही थी, उनके घर में ये बात चल रही थी कि देयर आर ऑलरेडी फाइव चिल्ड्रन and there is a stranger at their doorstep. Father is asking the children that what should we do with the baby, shall we keep it or not. So he is asking for the approval of the family members, especially the children. Oh, keep him, shouted the three younger children. Adam and Lemuel exchanged a glance. तीन बच्चे तो चिल्लाने लगे, पापा कीप हिम। एडम और लेमुएल ने एक्सचेंज अ ग्लैंस मीन्स एक दूसरे की तरफ देखा। आई गेस ही वुड बेटर स्टे फादर सेड एडम। बड़े लड़के ने, एडम ने कहा, पापा मुझे लगता है इसको यहीं रोक लेना चाहिए। आई थिंक सो टू सेड लेमुएल। लेमुएल ने भी फिर हामी दे दी और बोला कि मैं भी यही सोचता हूँ, हम बच्चे को रख लेते हैं। एंड बोथ गेव समथिंग लाइक अ साइन ऑफ रिलीफ। और दोनों बच्चों ने चैन की सांस ली। सो इट वॉज डिसाइडेड चिल्ड्रन दैट द फैमिली इज एग्रीड टू कीप द बेबी विद दैम। देन दैट सेटल्ड सेड फादर गोल्डन। फादर गोल्डन ने कहा तो चलो अब ये बात सेटल हो गई है दैट दे विल कीप द बेबी इन देयर फैमिली। सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स अप, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शैल वी कॉल दिस चाइल्ड। चलो मुझे लगता है ये बात अब यहाँ पे पूरी होती है कि वी विल कीप द बेबी, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस बच्चे को क्या नाम दें। ऑल द आइज वर फिक्स्ड ऑन द बेबी हु नाउ सेट ऑन मदर गोल्डन्स नी। सब लोगों का अट्रैक्शन ये बेबी था, सबकी आइज इस पर रुकी हुई थी। एंड ही सिटिंग ऑन मदर Golden's knees. It was a pretty picture, the rosy dimpled creature, the yellow floss ruffled over his sweet little mouth, open in a beaming smile. So, it was a pretty picture. एक बहुत प्यारी सा सीन है. The rosy, छोनो rosy baby with yellow curly hair on her sweet cute face and which is open in a beaming smile. He's smiling, so cute picture. Smiling back at him, Mother Golden's calm face in its frame of silver hair, and Father Golden in his big leather chair. Baby is smiling at his mother, and mother is looking at the baby with its frame of silver hair. Mom's hair are little bit silver, and Father Golden is sitting in a big leather chair. The five children with their sober faces lit up with unusual excitement. There is unusual excitement in the family. एक कुछ नया सा excitement है because they have just now welcomed a new little creature, a little baby in their house. A pleasant family picture. But all the lights of the room means the center of attraction is now the baby's yellow flossy curls. सब लोगों का ध्यान बच्चे की शक्ल और उसके प्यारे से कर्ली हेयर्स पे था. अगू सेड द बेबी इन अ गर्गल. बेबी ने गर्गल करते हुए बोला गू. ही सेज हिज नेम इज गू. अनाउंस जोसेफ. जोसेफ जो कि एक छोटा बच्चा था उसने कहा अरे देखो देखो ये कह रहा है इसका नाम गू है. गू. डोंट बी अ चकल हेड जोसेफ सैड एडम. एडम बड़े बेटे ने कहा ओ बुद्धू जोसेफ ये क्या कह रहे हो. वी वुड बेटर गिव द चाइल्ड अ सुटेबल नेम. मदर हम बेबी का एक नया नाम रखते हैं, एक सुटेबल नेम रखते हैं. ओ कॉल हिम अर्थर बिल रेगिनेंट क्राइड द चिल्ड्रन टुगेदर. बच्चों ने डिफरेंट नेम्स सजेस्ट करे. आर्थर बिल रेजिनेंट आर द नेम्स. आई टू लव अ बाइबल नेम. मम्मा ने कहा मुझे तो बाइबल में से नेम पिक करना पसंद है. बाइबल होती है एक होली बुक क्रिश्चियंस की. ऑल आवर चिल्ड्रन हैव बाइबल नेम्स. लेट अस नॉट कट द लिटिल स्ट्रेंजर ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज. मेरे सारे बच्चों के नाम बाइबल से लिए गए हैं तो इस छोटे से बच्चे का नाम भी
बाइबल से लेना चाहिए। इसको भी हम ये राइट देंगे, ये अधिकार देंगे कि इसका नेम भी हम बाइबल में से चूज़ करेंगे। लेमुल डियर यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग, मदर गोल्डन सेड। अब बच्चों के नाम पे बात चल रही है तो उन्होंने कहा लेमुल बेटा तुम्हारा नाम भी मैंने एक किंग के नाम के ऊपर रखा है। ही वॉज अ गुड बॉय टू हिज मदर सो यू आर, जैसे कि वो अपनी मम्मी का एक प्यारा बेटा था जैसे कि तुम मेरे प्यारे बेटे हो। ब्रिंग द बाइबल एंड लेट अस सी वॉट इट ओपन्स एट, चलो बेटा बाइबल लेके आओ। जोसेफ यू आर द यंगेस्ट यू शैल ओपन इट, लेमुल आप बाइबल लेके आओ और जोसेफ आप सबसे छोटे बच्चे हो, आप उसे ओपन करो। जोसेफ ओपन द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल and closing his eyes laid his hand on the page, then looking down he read। बच्चे ने बाइबल को खोला और उसके एक पेज पर रैंडम कोई भी पेज लिया और उस पर अपना फिंगर रख दिया और फिर लिखा, जो वहाँ लिखा था उसे रीड किया। देयर इज़ लिटिल बेंजामिन देयर रूलर द प्रिंसेस ऑफ जुदा देयर काउंसिल, वहाँ पे लिखा हुआ था एक लिटिल बेंजामिन था वहाँ का रूलर और वहाँ की प्रिंसेस थी जुदाह एंड देयर काउंसिल और उनकी मिनिस्ट्री थी। द प्रिंसेस ऑफ जेबुलन द प्रिंसेस ऑफ नैप्थली। सो इस पैराग्राफ में जो भी नेम्स थे वो अपीयर हुए उसकी फिंगर रखने से। दे वर लिटिल बेंजामिन, जुदाह, जेबुलन, नैप्थली। जेबुलन एंड नैप्थली आर डिफिकल्ट नेम्स सेड मदर गोल्डन। मदर गोल्डन ने कहा जेबुलन और नैप्थली तो बहुत ही मुश्किल से प्रोनाउंस होंगे। बेंजामिन शैल बी दिस चाइल्ड्स नेम, लिटिल बेंजामिन द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम। सो उस पैराग्राफ में जो नेम्स अपीयर हुए थे उसमें वो दो नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, तो दे चोज बेंजामिन और उन्होंने कहा आज से हम इसका नाम रखते हैं लिटिल बेंजामिन। द लॉर्ड bless and keep him. May God bless our little children. So this was the story. Thank you children. Do subscribe my channel. Bye bye.